كلامنا أقلامنا أعمالنا أسبابنا أوراقنا قلوبنا أوراقنا آراء لتسمع وخروج لتفعل. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إخوة المسلمين، نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلنا الإنسان، وبعد هذا الله سبحانه وتعالى أعطانا الإسلام. هذا نعم من الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بحولنا ولا بقوتنا، ولكن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على रसूल करीम। हमारे मोहतरम मेहमान ने शुरू में ये फरमाया कि भाई सुनने के लिए करीब आ जाए और समझने के लिए दूर से दूर चले जाएं, और फिर कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी पढ़ी, और फिर ये फरमाया कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए मेरे भाइयों जिसने हमें इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद उसने हम पे ये एहसान फरमाया कि हमें दीन इस्लाम अता फरमाया, इस्लाम की नेमत से नवाजा। और ये जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये ख़ास अल्लाह का फजल है कि उसने अपने फजल से, अपने करम से, अपने इरादे से हमारे किसी बगैर इस्तिक़ाक़ के हमें दीन इस्लाम अता फरमाया। الله سبحانه وتعالى وخلقنا وجعلنا على الإنسان. الإنسان هذا أفضل المخلوقات من خلق الله. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء له، خلق كل شيء لخدمة الإنسان. يعني كل مخلوق في السماوات وفي الأراضين، كل هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقهم لخدمة الإنسان. هذه السماوات وكذلك الشمس والقمر والمطر، كل شيء، والملائكة والأراضين والأشجار، يعني الموجودين في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى خلق كل هذه المخلوقات لخدمة الإنسان. والله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لخدمته. الله سبحانه كما ذكرنا في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليعرفون. मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हम पे ये एहसान फरमाया, हमें इंसान बनाया। और इंसान बनाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पे जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं, ये इस हज़रत इंसान के लिए पैदा की, इस इंसान की खिदमत के लिए पैदा की। चाहे वो मखलूक आसमानों में है या ज़मीनों में है
ये देखें, ये फरिश्ते हैं, हाँ, ये इंसान की खिदमत के लिए हैं, और ये ज़मीन पे जितनी नेमतें हैं, मखलूक़ात हैं, ये भी इंसान की खिदमत के लिए हैं। और इन नेमतों से, इन चीज़ों से इंसान फ़ायदा उठा रहा है। ये आसमानों से बारिश का बरसना, ज़मीन से गल्ले मेवों का उगना, और कितनी नेमतें हैं जो इस इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा की और इंसान उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन इस इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा करना है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया। और इबादत का मतलब लियारिफून है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लियाअबुदून ऐ लियारिफून, यानी अल्लाह को पहचानना, अल्लाह का तारुफ करना, अल्लाह की ज़ात आली को पहचानना, उसको अपने दिल में, यानी उसकी बड़ाई अज़मत को अपने दिल में उतारना, खुद भी पहचानना और इसका तारुफ करना। بسبب هذه المقصة إذا نسي هذا يعني هذا الإنسان هذا المقصد الدنيا الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نوح عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا لهذه المقصد مقصد واحدة وكذلك هم يدعون الناس بكلمة واحدة لكي يوحدون الله سبحانه وتعالى. هم يقولون يعني لقومهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني هذه الكلمة كلمة الإيمان وكلمة اليقين وكلمة المعرفة وكلمة العبدية ومفتاح الجنان لا إله إلا الله. نصحح نطقها باللسان ولكن يعني مقرها أي مكانها في داخل القلب ليس في اللسان. يعني نصحح نطقها باللسان ومقرها منطقة القلب. और जब ये इंसान अपने मकसद को भूल गया और इसने अपना मकसद दुनिया बना लिया, तो अल्लाह ताला ने इस इंसान की याद दहानी के लिए नबियों का सिलसिला जारी फरमाया। और पहले नबी जिनको बाकायदा शरीयत दी गई, अहकामात दिए गए, वो नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, हर एक ने आके यही दावत दी, ए कौम अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और हर नबियों की मुश्तरका दावत यही थी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के लोग कामयाब हो जाओ। अब इस कलमे का जो सादिर होना है, ये तो ज़बान है कि ज़बान से इस कलमे को पढ़ के इजहार करता है, लेकिन इस कलमे की जो करार की जगह है, जहाँ ये कलमा करार पकड़ता है, वो ये दिल है कि कैसे इस दिल के अंदर ये कलमा उतर जाए। क्योंकि ये कलमा कलमा अब्दियत है, ये कलमा मारिफत है, और ये कलमा कलमा ईमान है, और ये कलमा कलमा तक़वा है, और यही कलमा कलमा इखलास है। इसलिए इस कलमे को दिल में उतारना है। बज़ाहिर तो पढ़ने में ये आसान है, इसके अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन असल इस कलमे की जगह वो दिल है, इसको दिल में उतारना। أنا معنى هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني بدأ قبل كل شيء، يعني هو الأول قبل كل شيء، أول قبل الوجود وآخر بعد الخلود ومطلق عن الحدود وواجب له السجود. ما لنا رب سوى لا تراه العيون ولا تخالطه السنون ولا يسمع الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواعي. يعلم مثاقيل الجبال ومقاليل البحار
وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أسلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في واره علم ما كان وما يكون وما لم يكن ولو كان كيف يكون أحاط ربنا بكل ذلك علما. और हमारे मेहमान फरमाने क्या मायने है इस कलमे का, यानी ये कलमे का माना ये है कि माबूद नहीं है मगर अल्लाह, खालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, राज़िक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। इस कलमे को दिल में उतारना है कि ये कलमा इस तरह दिल में रासिख हो जाए, हमारे दिल में उतर जाए कि हम अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाले बन जाएं और इसको इजहार करने वाले बन जाएं और अपने इस दिल के अंदर एक अल्लाह के होने से यकीन और एक अल्लाह की रबूबियत और तौहीदियत हमारे दिल के अंदर उतर जाए कि अल्लाह ही वो ज़ात है कि जो इस कायनात के निज़ाम को बनाने वाला है और पूरे ज़मीन पे जितनी मखलूक है सब अल्लाह के इल्म में है, चाहे उन पे रोशनी पड़ती है चाहे जिन पे अंधेरा पड़ता है, सब अल्लाह के इल्म में। और अल्लाह वो ज़ात है कि गुमान उसको पा नहीं सकते और तारीफ़ करने वाले उसकी तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। और अल्लाह वो ज़ात है जो इब्तिदा से पाक और ऐसा इंतहा कि इंतहा से पाक, अव्वल भी वही, आखिर भी वही, ज़ाहिर भी वही, बातिन भी वही, और वही सजदे के काबिल ज़ात है और वही वाजिबुल वजूद है कि उसको सजदा किया जाए। इसलिए भाई ये अल्लाह की बड़ाई के ये बोल है कि अल्लाह पाक वो ज़ात है जो समंदरों के कितना पानी है इसके पैमाने को जानते हैं और पहाड़ों का कितना वज़न है ये अल्लाह के इल्म में है, और समंदरों की तह में क्या है ये अल्लाह के इल्म में है, और पहाड़ों की दामन में क्या कुछ खजाने अल्लाह है ये अल्लाह के इल्म में है। ये सब कुछ अल्लाह पाक ऐसा है कि हर उसके इल्म ने हर चीज़ का इहाता किया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुवा अल्लाह, हाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो समाई हुआ यरा कुल्ल शै, हाँ व फिस समाई अर्जुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इक़ाबुहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहता अथ-थरा الملك لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثله ولا مثاله لا وزر له ولا وزار له الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الله، هو في السماء وفي وفي عرشه، ويعني كل شيء يمشي بقدرته. الشمس يمشي بقدرة الله سبحانه وتعالى ليس بإرادته، وكذلك يعني القمر، كل المخلوقات يمشي بإرادة الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. हमारे मेहमान फरमाने के वही अल्लाह है जिसकी रबूबियत आसमानों में भी है और जिसकी रबूबियत ज़मीनों में भी है। आसमान में भी वही इलाह है और ज़मीन में भी वही इलाह है, और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है वो सब कुछ अल्लाह का है, और वही तुम्हारा